All right. So let's start with questions. हम प्रश्नों के साथ प्रारंभ करेंगे। Questions to you. प्रश्न आपके लिए। So can somebody tell me some key points of what you understood in the last 1 hour? पिछले जो हमने घंटों में देखा, कौन कौन सी बातों को सीखा, मुख्य मुख्य बिंदु को आप बताएं। Yeah. Who's brave, bold? कौन बड़े हिम्मत के साथ बताएगा? Himmat. है? Okay, so take the mic if anyone's ready. माइक लीजिए और बताइए। Who is the brave soul? Okay, very good. कौन है बुद्धिमान? Reshma. Very good. Okay, can share. Just some points, not all. I'm just asking for a few कुछ points. बिंदुओं को बताएं जो आपने यहाँ सीखा। तो हमें एक चर्च प्लांट करने के लिए पहले सबसे पहले एक शहर को चूज करना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ के लोगों को हमें शहर को जानना पड़ता है ताकि वहाँ के लोगों को हम जान सके, जी. तब जाके हम अपने कलिसिया को स्टार्ट कर सकते हैं। Okay, very good, very nice. बहुत अच्छा। Any more points? और Anything कोई else you दूसरा learned? बिंदु? हाँ, पीछे. You can just pass the mic. Thank you, Reshma. We need to know the economy of the place. Mhm. We need to have the perfect strategy. Yes. And while we will go for planting a church, there will be some spiritual battle, and definitely there will be, because Satan don't want to that God's realm grow. So he Yes. will do every possible thing. So we should be praying at first, and we should be breaking all the strongholds of the spirit and spiritual realms on these places, and then we should go for the church and Yes. everything according to God's will. Correct. Very good. Yes. Anything else? They covered most of the points. Any बहुत other सारे points? बिंदु पर उन्होंने पूरा किया है। और कोई दूसरा पॉइंट बता सकते हैं? Yes. Very good. We have to pray for our city. And we also said God loves. और हमारे शहर के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर शहर से प्यार करता है। Okay. So these were the key highlights. और ये मुख्य बिंदु है। So we will clap for Reshma, Paramita and Shalom. लोग की ताली बजा दें। So, जोर के बजा दो भाई, कंजूसी मत करना ताली बजा। so I mean, no, नींद भी चला गई। no, they deserve it. They're so bold. They answered. Everyone else. या ये कितने क्या बोलते बोल्ड थे उस उत्तर को बताने के लिए। तो आपने तो सुना और इसमें आप भी बोल्ड बने, है ना? ओके, अच्छा बात। चलो Okay, let's go to chapter 8. चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, अध्याय 8 पे जाएंगे। So, yes, God loves cities. We need a strong church to be planted in the city. हाँ, परमेश्वर शहर से प्रेम करता है और उस शहर में कलीसिया का रोपण होना चाहिए। How to do it? कैसे हम करेंगे? The first thing is we can have a core team. और हमें क्या करना चाहिए? हमारे लिए एक समूह होना चाहिए, मुख्य टीम का समूह होना चाहिए। Generally, when churches are planted, it is not planted only by one person. और जब देखते हैं कि कलीसिया की जब स्थापना होती है तो कई बार देखा जाता है केवल एक व्यक्ति ही इस्तेमाल किया जाता है। Not just one person, not one person alone. केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही नहीं, But generally we see maybe it's the pastor and his family. और हम देखते हैं कि वो पासवान और उसका परिवार उसके साथ में होता है, Or a group of leaders who were identified. और जो अगुवे को जो चुना जाता है या चुने हुए ऐसे अगुवे के द्वारा। So the pastor can have few people with him, but the main thing is everyone should have oneness of mind, oneness of heart. पर और देखते हैं कि उस पासवान के साथ कुछ अगुवे होते हैं
लेकिन बाकी लोग जो एक मन और एक साथ रहकर काम करने के लिए। So just because we want to plant a church, it doesn't mean we have to do it immediately. और चर्च का कलीसिया की स्थापना तुरंत करना ही नहीं, बल्कि कलीसिया की जो स्थापना जो की जाती है, इसका मतलब नहीं कि हम तुरंत उसको काम को करें। See, God can put a city in your heart, परमेश्वर आपके हृदय में शहर देगा, but we have to wait for the right time to plant. और हमें इंतजार करना होगा सही समय के लिए। So when we are waiting, we have to prepare ourselves. जब हम जब उसका इंतजार करते हैं या बाट जोते हैं, तो हम अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। One important thing is to learn about the city. और एक बात यह है कि उस शहर के बारे में हमें जानकारी लेना जरूरी है। So these days you can do it on the internet. और आप इन दिनों में क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट के माध्यम से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। So you can understand that place. आप उस शहर, उस स्थान के बारे में समझ सकते हैं। You can even maybe learn the language. और हम वहाँ की भाषा को भी सीखने का प्रयास कर सकते हैं। We can pray for that place. और हम उस जगह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। We can get God's vision, instructions for that place. उस स्थान के लिए परमेश्वर का जो दर्शन है और उसका नियोजन है, उसको हम देखने पाएंगे। And also, if you have some people whom you know, you can make a contact list. और ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए उस शहर में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको जानते हैं, उनका संपर्क, उनके नंबर्स का जो सेल नंबर है, मोबाइल नंबर को हम ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। So, you can keep preparing yourself. तो हमें क्या करना है, हमें उसकी तैयारी के लिए बने रहना है। And there will come a time when you have to go. जब समय आएगा तब हमें उसको वहां जाना है। At that time, we must be sure that this is God's time for us to launch the church. तब इस बात को समझना है कि ये सही समय है कलीसिया का वहां पर निर्माण करने के लिए। So once you go there, you have to do a few things. और जब हम वहां पर जाते हैं, कुछ बातों को वहां पर करना है हमें। We have to plan how we will prepare for the launch. और वहां पर जब हम उस कार्य को लेके जाते हैं उस स्थान में, उसके लिए हमें तैयारी करना है। And how exactly we are going to start the church. और हमें किस रीति से वहां पर उसको स्थापना करना है। The one big need is money. सबसे बड़ा जो जरूरत है वो है रुपए पैसे की, आर्थिक। So we have to make a decision how this money is going to come. और इस बात का निर्णय लेना है कि वो रुपया या पैसा कहाँ से आएगा। In some cases, what people do, they work and they save money. और कुछ लोग ऐसे हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, और उसमें से कुछ पैसा को बचा के रखते हैं। And when they start the church, at least they have some money to start. और कलीसिया स्थापना के लिए उनके पास कुछ पैसा होता है कि उस कार्य को शुरू करें। See, even Paul, Aquila, Priscilla, they were all tent makers. They were earning money to support themselves. देखते हैं कि पौलुस और एक्विला, प्रिस्किला को देखते हैं, ये लोग तंबू बनाने का काम करते थे, उसमें से जो कुछ वो बिजनेस करते थे उसके द्वारा वो अपने पैसे को बचत करते थे सेवा के लिए। So if we want to work also and do ministry, there's nothing wrong, provided God is leading you that way. ये कोई गलत बात नहीं है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। Sometimes what people do is they keep their profession and they also are a church planter. और कुछ लोग उनके पास एक विशेषता होती है, उस विशेषता के जो कार्य होते हैं उनके जीवन में, उसके द्वारा वो कार्य करने के द्वारा भी साथ साथ क्या करते हैं, कलीसिया की सेवकाई को भी करते हैं। So they have a job also and they are doing ministry also. उनके पास नौकरी होती है और उसके साथ साथ वो सेवा को भी करते हैं। So that is also fine. वो भी बहुत अच्छी बात But है। it will be little difficult लेकिन वो कई बार वो कठिन होता है। because you have to go and work the full day and then weekends you have to do the church work. It's very tough. और ये बड़ा कठिन होता है कि आप दिन भर आप जाके नौकरी करें, उसके बाद फिर उस सेवा के लिए समय निकालें। But you see, finances are needed. और ये इस बात को ध्यान रखें कि हमें आर्थिक
जरूरत है उस काम को करने के So लिए। if there is nobody to support us, this is what we can do. We can और- earn and we can do the church work. ऐसा समय कोई हमें सहयोग नहीं करेगा, लेकिन हम अपने आप में पैसा क्या कर सकते हैं, नौकरी के द्वारा प्राप्त करके उस सेवा को हम करने पाएंगे। Right? So there are many pastors who have done like this. That is how they started the church. और ऐसे कई पासवानों ने किया है और इस प्रकार कार्य उनका हुआ है। But in some cases, you can receive a support. और कुछ ऐसे विशेष बातों को हम देखने पाते हैं कि लोगों के द्वारा आर्थिक बातों को ग्रहण करते ही आर्थिक रुपया उनके पास आता है दूसरों के द्वारा। So many times church planting is done from what we call as a sending church or a mother church. और हम ऐसी कलीसिया को क्या कहते हैं कि जो माता कलीसिया कहते हैं, जो मुख्य कलीसिया के द्वारा भेजा गया हो। So when they send you, they'll say, okay, we will support you every month with some amount of money. और जिस कलीसिया के साथ जुड़े हुए सेवा हम नया जगह सेवा करने का जो प्लान करते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम भेजते हैं, ये कलीसिया आपको आर्थिक सहयोग करेगी। So this is a very big question for a church planter. Where will the money come from? ये बड़ा एक प्रश्न है कलीसिया का रोपण स्थापना करने वालों के लिए कि हमें आर्थिक सहयोग कहां से मिलेगा। Okay, so those of us who want to do church planting, you have to think about all these things. और जो पहली बार जो कलीसिया की स्थापना करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे या सोच रहे हैं, तो इन बातों को सोचना बहुत जरूरी है। Next thing is we have to also think about our family. और दूसरा जो बात सोचना है, हम अपने परिवार के बारे में। So here, you know, in our outreach churches, when pastors say we will go there to a city and serve. और मान लीजिए यहाँ पर पास्टर क्या बोलते हैं कि हम उस शहर में जाकर हम सेवा को करेंगे। So if pastors say that, we ask questions like, okay, pastor, you want to go? What about your family? What about your children's education? हाँ, अब अगर मान लीजिए उस जगह में, नए जगह में जाकर सेवा को प्रारंभ करने के लिए तैयारी की है, तो पासवान से पूछते हैं कि भाई आपके परिवार के बारे में क्या होगा और कैसा करेंगे और आपके बच्चों की पढ़ाई के बारे में कैसा करने पाएंगे। See, because if the wife has a job, she will lose the job. अगर मान लीजिए पत्नी नौकरी कर रही है तो नौकरी को खो देगी वो। Children are studying in good school here. Are there good schools in that place? और मान लीजिए यहाँ इस शहर में अच्छे स्कूल में पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, तो क्या उस शहर में अच्छा स्कूल मिलेगा उनको पढ़ने के लिए? Right? So these are all practical things. और ये एक प्रायोगिक बात है। Because if, you know, we have a family, it will affect everybody. और अगर परिवार है तो प्रत्येक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसका। So we have to prayerfully look into these things and, you know, hopefully our family also will support. They'll say, okay, we'll go with you. और क्या करना है, हमें प्रार्थना करना है और प्रार्थना के द्वारा उस सहयोग को उनके द्वारा प्राप्त करना है, तब वो कहेंगे हाँ ठीक है, हम आपका सहयोग करना चाहेंगे। क्योंकि सबसे पहले बात याद रखना, व्यक्ति को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। Right? So see, God may call you to another city within India. अगर मान लीजिए परमेश्वर उस व्यक्ति को भारत के कोई ऐसे शहर में अगर सेवकाई के लिए बुला रहा है, Or God may call you to another country. हो सकता है परमेश्वर आपको दूसरे देश राष्ट्र में भी बुला रहा है सेवा के लिए। It is a big move. और ये एक बड़ा क्या बोलने बढ़ोतरी का कारण हो सकता है It is a big change. और बड़ा बदलाव हो सकता है। So we have to be prepared with the help of God. हम परमेश्वर की सहायता से हमें तैयारी को करना है। And wherever God puts us, we also have to find out about the legal rules. Remember, I shared about it earlier. और मैंने पहले आपको बताया कि हम वहाँ के जो कानूनी सलाह को प्राप्त करें, कानून के बारे में जाने, उस क्षेत्र के बारे में। So if they want you to register and, you know, do all those things, you have to do it. और अगर मान लीजिए वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, तो आप उन कामों को करें। And you know, once you have decided all these things, जब आप इन बातों को निर्णय लेते हैं, and you go, जब जाते हैं, the next thing is what we call survey. और अगला जो कार्य है, आपको उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना है। So we must understand the city. आप शहर को समझना बहुत जरूरी है। In the end of our book, you know, we have a proper survey of Bangalore city.
और हमारे इस पुस्तक के आखिरी में बैंगलोर का पूरा सर्वेक्षण दिया गया है about what kind of people live here, और किस प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं what are the places, और कौन सी जगह हैं, and in those places how many schools, और- colleges, workplaces are there. उन जगहों में स्कूल, कॉलेज और नौकरी का स्थान कौन सा है। Because we are trying to understand what kind of people live here. और इसलिए कि ये किस प्रकार के लोग इस शहर में या उस स्थान में रहते हैं। So once you understand the city, prayerfully choose where you want to plant the church. और हम जब उस शहर के बारे में समझ जाते हैं तो प्रार्थना के साथ हम उन जगहों को चुन सकते हैं। So you can either select the place before you come or once you come to that city. उदाहरण के लिए समझेंगे हम कि या तो उस शहर में जाने के पहले हम उसका चुनाव करें, समझे, या फिर हम जब उस शहर में पहुंच जाते हैं तब हम उसका निर्णय लें। So be very sensitive about where God wants you to plant. और हमें बहुत सचेत होना है उस बात के लिए कि परमेश्वर हमें कौन सी जगह भेजना चाहता है। And usually what we say is plant it where you don't have churches close by. और हम अपनी कलीसिया को ऐसी जगह स्थापित न करें जहां पर और दूसरी कलीसियाएं पाई जाती हैं। Because if we are going where many other churches are there, we may disturb those churches. और क्या होगा कि वहां पर लोग अलग अलग कलीसिया में जाते हैं, अगर हम उनके बीच में जाके काम करेंगे वहां पर हम मतभेदों को देखने पाएंगे। So best is go where there are no churches. अच्छा तरीका ये होगा कि जहां पर कलीसिया कोई भी विश्वासी उस क्षेत्र में नहीं है वहां जाकर कार्य को करना। And when we are going there, we have to meet other Christian, leaders, pastors in that place. जब हम उस जगह में जाते हैं तो हम क्या करें, वहां के उस आसपास जो उस क्षेत्र में पाए जाने वाले अगुओं से मिले, उनसे वार्तालाप करें। So we must be honest with them. हम उनके साथ ईमानदारी का व्यवहार करें We should not say, I came only for prayer meeting. और उनसे ये न कहे कि हम केवल प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना के लिए हम यहाँ पर आए हैं। Right? So we have to tell them clearly, I have come because I believe God wants me to plant a हम church here. उनसे स्पष्ट बात करें कि मैं यहाँ पर कलीसिया की स्थापना करने के लिए आया हूँ। Because what will happen if you say, I came for prayer meeting, अगर बोलेंगे कि मैं केवल प्रार्थना के लिए ही यहाँ पर आया हूँ, later they see that you planted the church, अगर बाद में वो देखते हैं कि आप कलीसिया की स्थापना कर रहे हैं, करते हुए, all those senior pastors will get angry with you. तो क्या करेंगे, जितने भी अनुभवी पास्टर है और प्राचीन लोग हैं आपसे क्रोधित हो जाएंगे। They'll say, oh, this person deceived us. हाँ, अब क्या है कि ये व्यक्ति क्या किया, हमारे साथ विरोध किया या हमारे साथ गलत कर रहा है करके। Right? So they will feel like you're trying to mislead them. और हम उनके अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत निर्देश दे रहे हैं। So as a young person who's going to plant church, we have to gain their trust, we have to gain their respect. और हमें एक जवान होने के नाते जब हमने एक नई जगह जाके कलीसिया का प्रारंभ करते हैं तो क्या करना है कि हम उनके मनों को जीतना है और उनका आदर सम्मान करना जरूरी है। See, another very important thing is you should have your location if it is close to the people that you want to serve. और सबसे अच्छी बात ये होगी वो स्थान को चुने जहां पर आप जिनके बीच में जाकर काम करें, जो आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। So if God has put in your heart to work with young people, find a place near colleges. और अगर मान लीजिए आपको जवानों के बीच में सेवा करना है तो आप क्या करें, ऐसे स्थान को चुनाव करें जहां पर लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कॉलेज, स्कूल, ऐसे स्थान को चुन So सके। if God puts in your heart, you must work with doctors, go put near the hospital. और अगर मान लीजिए परमेश्वर का आत्मा ने आपको डॉक्टर के बीच में सेवा करने का मन डाला है तो क्या करें, ऐसे क्षेत्र को चुने जहां पर डॉक्टर्स लोग रहते हैं। So select a place which is easy for the people to come. और आप ऐसे स्थान को चुनाव करें जहां पर आसानी से लोग आ सके। So you can also do, evangelism in that place. और साथ साथ क्या करें, वहां उस क्षेत्र में आप सुसमाचार प्रचार का काम भी करें। So when once all this is done, जब ये सब पूरा हो जाता है we can pick a date to start the church. और एक तारीख निश्चित करें कलीसिया का आरंभ करने के लिए। But before the starting date, और शुरुआत करने के पहले we can spend time in prayer and worship. और हम क्या करें, अपने समय को प्रार्थना में और आराधना में समय व्यतीत करें। In fact, I've heard of people who have prayed for 1 year
मैं कई बार मैंने इसको सुना है कि लोगों ने साल भर प्रार्थना की You know, they picked a place, they went there and they prayed for 1 year before starting the church. और कलीसिया प्रारंभ करने के पहले उस स्थान को उन्होंने चुनाव किया और पूरा साल भर तक उन्होंने प्रार्थनाएं की। Right? So once you have finished your prayer and worship, जब आपकी प्रार्थना और आराधना समाप्त खत्म हो जाती है, that's when you can start the launch. और Or क्या the करें, तब starting. वहां पर आप उसको शुरुआत करें, उसको कलीसिया रोपण प्रारंभ करें। Right? So we can start it in a simple way, or some people want to do a big start. That's fine. Whichever way you want to do. आपको परमेश्वर की अगुवाई करता है, चाहे वो साधारण तौर से प्रारंभ करे या बड़े स्तर से प्रारंभ करे। And the most important thing is for us to understand what kind of audience we want in the church. और इस बात को आप समझे कि आप किस प्रकार के श्रोताओं को, सुनने वाले लोग चाहते हैं आपकी कलीसिया में। Right? So based on that, we can tailor our ministry, tailor our format and all that. और उसके अनुसार आप क्या करें, उसको तैयार करें, बनाने का, निर्माण करने के लिए। And that will also help us to promote the church in those particular communities or people groups. और क्या करें, आप उन लोगों के बीच में, उन समाज के बीच में, संस्कृति में जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लोगों के बीच में क्या कर सकते हैं, आप कलीसिया को बढ़ाएं, कलीसिया को उसको प्रमोट करें। So some more things that we have to keep in mind. हम अपने मन में कुछ बातों को और ध्यान रखना है। The place that we choose, we must think about 10 years, 20 years from now. और जिस स्थान को चुनते हैं, हम आने वाले 10 साल की योजना को बनाएं, उसके बारे में सोचें। Right, because the city will grow. क्योंकि वहां पर शहर बढ़ेगा। So if we have taken a place in a residential area, मान लीजिए आपने ऐसा जगह जहां पर लोग रहते, उस स्थान को चुना है आपने, what will happen in 5 years, 10 years? Lot of houses will come. तो 5-6 साल के बाद क्या होगा, बहुत सारे आसपास घर बन जाएंगे। And we do loudspeaker, this, that, full complaints. और अगर मान लीजिए आपने बाहर माइक वगैरह लगाए, साउंड सिस्टम लगा दिए, तो आपके बारे में पूरा कंप्लेंट्स सरकार के पास पहुंच जाएगा। Right, and also what we do, bikes parking. और उसमें क्या होगा, गाड़ियां खड़ी करने में दुविधा होगी आपको। No, lot of people park the bike. हाँ, बहुत सारे लोग जो गाड़ियां खड़ी करते हैं, And in that area, they will start complaining, oh, और- because of this church, parking और is happening. लोग कहेंगे, देखो कि ये चर्च के कारण यहाँ पर बहुत दुविधा हो रही है, आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। So these kind of things we should think from before. और ये सारी बातें हमें पहले से सोचना है। So it is better to take a place where it's not for residential but maybe a commercial area. आप ऐसे जगह को ना चुने जहां पर केवल आने वाले दिनों में कॉलोनी बनने वाली है, लेकिन ऐसे जगह चुने जहां कमर्शियल एरिया, उस स्थान को चुने आप। Right? So also sometimes we have to think, should I use loudspeaker or can we do this a little quieter? और कई बार हमें उस बात को भी चुनना होगा, क्या मुझे यहाँ पर साउंड सिस्टम लगाना होगा या फिर शांति से यहाँ पर उस कार्य को करना होगा। See, because when we do things like that, then the people will complain and we can't call that persecution. और अगर इस प्रकार की व्यवस्था को हम करेंगे, फिर बाद में हमको इस कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर सताव हो रहा है, हमें लोग सता रहे हैं करके। See, we are troubling them. कई बार हम क्या करते हैं, हम उनको परेशान करते हैं। Right? So the way we do church, we should not trouble anybody. हम जब कलीसिया को प्रारंभ करते, कलीसिया चलाते हैं, तो हम लोगों को परेशान नहीं करना है। Right? So we have to think all this, sound system, parking, everything we have to think. हम इन बातों को सोचना है कि ये गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह और जो वहां पर म्यूजिक, जो साउंड सिस्टम जो लगा दे, इन सब बातों को सोचना है हमें। Right? And sometimes, people may look at the way we have built it and also say it's just a house. कई बार क्या होता है, लोग देखते हैं कि वो चर्च वहां पर ऐसा होता है, घर जैसे घर बनता है उसी प्रकार दिखाई देता है। Right? So and then they'll complain, they'll say they are doing prayer meeting in the अब house. देखो ये घर में, फिर लोग जाके कंप्लेंट करते हैं, उसके बारे में बताते, देखो यहाँ पर एक घर बना था, लेकिन यहाँ पर प्रार्थना सभा ही चल रही है। Right? So in some such situations, maybe you can make the architecture as if it looks like a house. और कई बार इस प्रकार का भवन का हम मानचित्र बनाते हैं और वो घर के समान दिखाई देता होगा। Like a church. वो Sorry.
जो चर्च के समान दिखाई देता होगा। Right. So I know that is not important for us, but maybe that will help people to understand that this is a church. और ये हमारे लिए उपयोगी नहीं, लेकिन दूसरों को समझने के लिए कि ये चर्च करके समझने के लिए हम उसको प्रयास करते हैं। We must be wise हम बुद्धिमान होना है, so that we don't attract any unnecessary attention. हम कोई ऐसी चीजों से उनको आकर्षित ना करें। And then we can have the first church service. और हमारे पास जो पहली जो सभा कलीसिया की पहली सभा जो थी, And from that time we have to also see how we can maintain the data of the people who are coming. और हमने उनका डेटा को तैयार किया कि लोग किस प्रकार आते हैं करके। So we generally in our church we give one card. They will write their contact number, email ID. और हम क्या करते हैं कि हम कलीसिया में जो नए लोग आते हैं उनको हम कार्ड देते हैं ताकि उसमें उनका कांटेक्ट नंबर लिखे और जानकारी उनके उसमें प्राप्त करें उनकी। And we have member care team. They will call. They will make phone call. और हमारे पास जो टीम है उनको क्या करते हैं, समय समय पर उनको फोन करके बातचीत करते हैं। So these are all like systems to follow up. और ये एक प्रक्रिया है, उसको हम फॉलो अप करते हैं। So slowly people will start coming. They will start feeling like this is the church where God wants me to be. और धीरे धीरे लोग आते हैं, लोग मिलते हैं और इस प्रकार कलीसिया बढ़ती है। So now let's look at what kind of methods we can use. और Methods, yeah. What kind of methods can we use? हम कौन कौन से ऐसे रणनीतियां या प्रक्रिया को हम चुन सकते हैं, कर सकते हैं। Obviously, we have to use biblical ways. और अब अधिकतर देखते हैं बाइबल आधारित चुनाव को या प्रक्रिया को हम करते हैं। One more important thing is to have ministries that will address the needs of different groups of people. और इस बात को प्रभाव डालता है कि अलग अलग जो समुदाय या सामुदायिक समूह के लोग हैं उनके बीच में कार्य को करने के लिए। So we can have children's ministry, youth ministry, women's ministry, men's ministry, cater to all the needs. और ये सब जरूरी है, महिलाओं की सभा, बच्चों की सभा, जवानों की सभा, ये कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है। So when we start addressing their needs, they will experience God's power. They'll start coming. और जब हम इस प्रकार रणनीतियों को पहचानते हैं, बड़ा अच्छा होता है बढ़ने के लिए और उनको प्रभावशाली बनाने के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए। Sometimes there are specific needs in the church. कई बार विशेष जरूरतें होती है कलीसिया में। So we can have ministry around that need. और उसके चारों ओर सेवकाई की जरूरतें होती है। For example, maybe young people don't know how to manage their finances. कई बार क्या होता है, जवान लोग को ये नहीं मालूम होता है कि कैसे हम आर्थिक व्यवस्था को अपने जीवन में कर सके। So we can have a ministry where we have workshops about financial management. और उनके लिए हम कार्यशाला गठित करते हैं ताकि कैसे वो अपने पैसों का संचालन कर सके। So we have to identify such things. हम ऐसे चीजों को हम खोजते हैं। So then we will be able to create a required workshop or something that people can benefit from. तब उस रचना को हम बनाते तैयार करते हैं जो लोगों की आवश्यकता के अनुसार। And we can prepare our believers in such a way that they impact society by engaging in the professional world. और हम इस प्रकार विश्वासियों को मजबूत बनाते हैं ताकि उन ऐसे आवश्यकताओं को समझने के लिए जब उनकी जरूरत है कलीसिया की हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले, ताकि और उनको क्या करते हैं, उनको उसमें उस कार्य के लिए उनको सौंप देते ताकि वो उसमें व्यस्त रहे और उनकी जरूरतों को समझे। So in chapter 13 we read about 7 mountains. और 13वां अध्याय में हम 13वां अध्याय को जब पढ़ते हैं वहां पर हम पाते हैं 7 पर्वतीय कार्य। So basically they are influences. और ये सब हमारे प्रभाव करने वाली बातें, Family, परिवार, religion, जो धर्म, education, शिक्षा media, और मीडिया, arts and entertainment, और जो कला और मनोरंजन, business, व्यवसाय government. और सरकार। So in these areas believers should be a witness. और इन क्षेत्रों में विश्वासी लोग गवाह बनना या ठहरना है। When we do that, जब हम उसको काम करते हैं we are able to influence the society.
तब हम क्या करते हैं, समाज के लिए हम प्रभावशाली बन जाते हैं, We can live with godly standards और हम परमेश्वर की उस दैविक इच्छा में हम अपने जीवन को व्यतीत करें, and the believers can make a impact. और विश्वासी लोगों के लिए प्रभावशाली बने। Okay, so in this way, we as a church can make an impact. और इस प्रकार कलीसिया समाज के लिए, लोगों के लिए प्रभाव बन सकती है। Regarding the growth of the church, we've already discussed. और हमने कलीसिया की उन्नति के बारे में हमने सीख लिया है। Remember, we said pioneering stage, और हमने शुरुआती जो कदम को, चरणों को देखा है, then organizational, और administrative, वहां पर प्रशासनिक संगठनात्मक कार्य को हमने देखा, pastoral team, पासबान की टीम को देखा, equipping stage, और लोगों को प्रशिक्षण करके तैयार करना, and apostolic function. और प्रेरिताई के कार्य के बारे में। So in the world, we see many churches that have grown. और हम संसार में ऐसे बहुत सी कलीसिया को देखते हैं जो बढ़ोतरी को पाई है, We can also see what method they used. और हम उस बात को देखते हैं कि उन्हें किन तरीकों का इस्तेमाल किया। Remember, we said about Korea, that Yordo Full Gospel Church, और हमने कोरिया की कलीसिया के बारे में हमने देखा, जाना उसको, their strategy was cell group. और उनकी जो तरीका था कार्य करने का, वो है सेल ग्रुप के माध्यम से। Some people, what they did is they used TV. और कुछ लोगों ने क्या किया, टीवी के माध्यम से, Some people are using internet, और कुछ लोग इंटरनेट के माध्यम से, live stream, और लाइव जो स्ट्रीम के द्वारा, satellite churches. और सैटेलाइट चर्च के द्वारा। So we can study the different models and pray and ask God, God, what do you want us to do? और कलीसिया के विकास के लिए हमने अलग अलग तरीके को देखा, उसको शहरों में और कलीसिया संस्थाओं के द्वारा। So here, we do a lot of teaching, और यहाँ पर बहुत सारे शिक्षण की हमें आवश्यकता है, या right? सिखाने की So आवश्यकता a है। lot of what we do is teaching, creating resources for people. उसके लिए लोगों को सिखाने के लिए लोगों को सिखाना है, और लोग चाहिए ताकि उसको मजबूत कर सके। Right? So every church has its own vision, a strategy. We have to depend on God हर to एक grow कलीसिया the के church. पास एक दर्शन है, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, स्थापना के लिए। I'm only going to touch on chapter 23, 24 and stop. और यहाँ पर मैं 23 अध्याय और 24 अध्याय को बताकर मैं समाप्त करूंगी। This talks about the personal preparation of a church planter. और यह ये है व्यक्तिगत तैयारी जो कलीसिया की स्थापना करते हैं। So if you want to be a church planter, अगर आप एक कलीसिया के स्थापक हैं, this will help you. ये आपको बहुत मदद करेगी। One is we have to be spiritually strong. सबसे पहली बात, आप आत्मिक रूप से मजबूत बने। We can also get some training and knowledge to equip ourselves. और हमें भी कुछ जानकारियां और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। So, you can learn from a course, or you can learn under a pastor. आप या तो किसी कोर्स की आवश्यकता है, या किसी अगुवे के अधीन में रहकर सीखना। So this will make us ready. और ये बातें आपको तैयार करेगी। Another important thing is be very clear that God wants you to plant the church. और दूसरे इस बात को समझना है कि Be clear about the vision. और हमें स्पष्ट होना है जो हमें दर्शन मिला। The next important thing is be ready to work double hard. और हमें अगला जो है कि दुगनी मेहनत के साथ हमें तैयार रहना। Because Paul also says, I work very hard. और पौलुस भी कहता है कि मैंने कठिन परिश्रम किए। So church planting is hard work. और कलीसिया स्थापना इसका कठिन मेहनत है उसमें। And we also need to be emotionally strong, or we need a strong heart. और हमें क्या करना है, भावनात्मक रूप से हमारा मजबूत हृदय होना है। Right? So if somebody says something, immediately you're becoming sad. और कई Or बार we should be कोई strong. कई बार क्या है, बड़े जल्दी से कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं जो जिससे हम निराश हो जाते हैं। So, लेकिन हमें मजबूत होना है। right? Many things will come, but we have to be strong emotionally. बहुत सी बातें आएगी, लेकिन हमें
भावनात्मक तौर से हमें मजबूत होना है We can also make our personal life in order. और हमारे व्यक्तिगत जीवन को एक क्या करना है, व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित करना है Our relationships, finances, because once you start, then it's very difficult to bring order. हमें क्या करना है, हमें आर्थिक बातें को और भी जो चीजों को, ताकि वो एक सुचारू रूप से व्यवस्थित ढंग से कार्य हो सके। Next important thing is discipline. अगला जो है अनुशासन। We can only become disciplined with God's strength and God's power. और अनुशासन जो है परमेश्वर की सामर्थ और प्रेरणा के द्वारा ही हम विकसित कर सकते हैं। Especially in things like reading the Bible, worship, prayer, we need to discipline और ourselves. विशेष तौर से जब बाइबल पठन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं, उसमें हमें अनुशासित होने के लिए। Right? People say one of the toughest things is to work with other people. और बहुत ही कई लोग कहते हैं बड़ा कठिन होता है दूसरों के साथ काम करने में। Right? But if you want to be a pastor, you want to plant a church, there is no option. You have to work with people. हाँ, अगर मान लीजिए आपको पासबान बनना है, सेवा करना है, अगुवे बनना है, तो आप कोई भी समस्या आने दे, आपको लोगों के साथ काम करना ही होगा। Right? So we have to learn to love people, care for people. हमको ये सीखना है लोगों के साथ कैसे प्रेम करना है और उनकी देखरेख कैसे करना है। And we can also develop some skills. और हमें क्या करना है, साथ साथ में हमारे अंदर कौशलता को विकसित करना है। Things like budgeting, planning. जैसे कि हमें योजना बनाना और पैसे का प्रबंध कैसे करना, योजना बनाना, सब बातों को। And we must always be alert about opportunities. और हम हमेशा सतर्क रहना है जब हमें कोई अवसर जब मिलता है। So wherever we see opportunity, we have to extend the kingdom of God. और जब कभी हमें अवसर मिलता है, इस बात को याद रखना, हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो। Okay. So I'll just share one quick example. मैं एक उदाहरण को आपको बताना चाहती हूँ। We used to have youth programs, हम अधिकांश हम जवानों की सभाओं को तो करते हैं, but at some point we stopped it. और कुछ कारण हमने उसे बंद कर दिया। And that program was called Elevate. और उस कार्यक्रम को एलिवेट करके कहते थे हम। So now Elevate stopped. एलिवेट वो बंद हो गया। But when we wanted to restart it, जब कभी हम उसको पुनः प्रारंभ करते हैं, Pastor got one idea. पास्टर जी ने हमको एक आइडिया दिया, एक तरीका दिया। He thought instead of just doing the meeting for our youth, और हम केवल हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना हम लोग करते हैं, सभाएं चलाते हैं, उसके अलावा instead of this, why can't we call students from colleges? और क्यों नहीं इस बात को हम कहें कि ये सेवा, युवाओं की सेवा स्कूल और कॉलेज के लिए। So they invited one college. और उन्होंने एक कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया। So in one program, so many college students came. और एक कार्यक्रम में बहुत सारे विद्यार्थी लोग दूसरे कॉलेज से भी आए। So from that we got this thing, why can't we do this program in the college? और हमने फिर सोचा क्यों नहीं इस कार्यक्रम को कॉलेज में करें। So we used to do a ministry called Campus Elevate. और उसको फिर हमने नाम दिया कैंपस एलिवेट के नाम से। We used to go to the college and they'll give us like this 1 hour and we will do some interesting topic but biblical. और हम क्या करते हैं, वो कॉलेज हमें अनुमति देता है, वहाँ जो भी 1 घंटे का समय लेते हैं और वहां पर हम कुछ विषयों पर हम चर्चा करते हैं और वो बाइबल आधारित होता है। So every week we used to go to colleges. और हम हर सप्ताह कॉलेज में जाते हैं। In one college, 1 hour session, there will be 800 girls. और एक सेशन में लगभग 800 जो गर्ल्स होती है, लड़कियां होती है। Think about it. सोचिए, Where will you get so many people to share the gospel? और कहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर सुसमाचार सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। But in about 2 hours, we were able to speak to around 1,500, 1,600 students. और जब 2 घंटे में हमें करीबन हजारों की संख्या में हम लोगों को सुसमाचार सुना देते हैं। So, we have to think like this. हम लोग इस प्रकार की बातों को सोचना है। Where people are, there we'll go. जहाँ लोग हैं वहां में जाना है। We have a ministry called Catalyst.
और हम एक सेवकाई का जो नाम है वो है कैटलिस्ट। Pastor Selena, who teaches you, she is heading up Catalyst. और वो सेलिना सिस्टर उसको सिखाएगी उस विषय पर। From Catalyst, we go to schools. कैटलिस्ट में हम लोग स्कूल जाते हैं। You know, children are suffering with depression, questions about identity. We Or- teach from the Bible, but you know, in a way that they can accept it. बच्चों को हम सिखाते जैसे बच्चे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, और उनको हम ऐसी बातों को किस प्रकार उन बातों से निकलना, चिंता में पड़ जाते हैं, कुछ बातें उनको समझ में नहीं आती, इन बातों को लेकर उनके साथ हम चर्चाएं करते हैं। So this year we got, you know, many schools. I don't know the number, but every week our people are going to schools. They are teaching hundreds of children. और हमें उसकी संख्या नहीं मालूम, लेकिन इन दिनों में हमारे कलीसिया के लोग ऐसे बहुत से स्कूलों में जाकर बहुत से बच्चों के, सैकड़ों बच्चों के साथ मिलते हैं और उनको सिखा रहे हैं। Right? And there are testimonies. When the teachers prayed for the child, miracles happened. और जब टीचरों ने प्रार्थना किया, बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म भी हुए। So you see how we must think, okay, God, how can I make this bigger? How can I bless more and more people? हमें सोचना है और प्रार्थना करना कि परमेश्वर इस काम को कैसे बड़ा बनाए और बढ़ते चले जाए। So if we want to be a church planter, we have to think like this. और जब कलीसिया की स्थापना या रोपण करने वाले हैं, इस बात को सोचे। So the journey will not be easy, और ये यात्रा बहुत आसान नहीं है, but God will help us. लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। No, I'll just share one more testimony and close. और मैं यहाँ पर एक गवाही को बताकर समाप्त करूंगी। You can read. There are many other points in the book, but this is as much as we could cover और properly. आप बहुत से विषय है, बिंदु को दिया है, आप उसको पढ़े, मैं यहाँ पर समाप्त करूंगी। When COVID came, जब कोविड का समय था, we had to close the classes for the Bible college. और हमने क्या किया, बाइबल स्कूल के क्लासेस को बंद कर दिया। So 2020, our batch, we told them, pack your bags, go back because we don't know, lockdown. और 2020 में हमने उसको बंद कर दिया और उसका विद्यार्थी से कहा कि आप बंद करो और सबसे यहाँ से जाओ करके। Right? So now what to do, because students are not there, what to teach? Everybody is at home. अब हम सारे बच्चे यहाँ पर एक जगह नहीं है, सब अपने अपने घर में, अब हम क्या सिखाएंगे? So for one semester, we taught the same batch on Zoom. और हमने क्या किया, वो जो एक सेमेस्टर में जो विषय के बारे में जूम के माध्यम से हमने उनको सिखाया। Right? But at that time, Pastor had this idea, why can't we make our Bible college online and make it global? और उन्होंने, पास्टर ने इस प्रकार सोचा, क्यों नहीं हम इस बाइबल कॉलेज को बड़े स्तर से, यानी पूरे सभी जगह लोग उसको सुन सके और सीख सके। So, our IT team, they worked on the whole plan, like the portal and everything. और उन्होंने सब मिलकर उस रणनीति को तैयार किए और पोर्टल को तैयार किए। Right? So once all our IT stuff was ready, we launched it. We had people from more than 200 countries registered. और क्या हो गया कि जब पूरी टीम ने पूरा तैयार कर लिया उस मीडिया को, उसको संचालन करने के लिए, More than 200 countries. कम से कम 200 से अधिक जो देश के लोग उस क्लास में शामिल हुए। Right? So from that year, we have hundreds of students joining us, not just on campus, but we have the online versions where hundreds of students join and learn. और देखते हैं कि केवल हमारे कैंपस के बच्चे नहीं थे, बल्कि और भी दूसरे सैकड़ों बच्चे उसमें शामिल हुए वचन को सीखने के लिए। So thousands of students have registered on the e-learning platform. और ई प्लेटफॉर्म में करीबन हजारों की संख्या में लोगों ने रजिस्टर किया वचन की सीखने के लिए। See, in COVID, we closed the classes. हमने कोविड में क्या किया, क्लासेस सब बंद कर दिया। But with God's leading, it's gone global. और जब परमेश्वर ने हमारी अगुवाई किया, विश्व स्तरीय वो कार्य हो गया। Right? So we have people from so many countries joining us and graduating every year. और कई देश राष्ट्रों से लोग उसमें पढ़ाई के लिए अपने एडमिशन किए और ग्रेजुएशन को प्राप्त किए। So see, basically I'm talking about expansion. और मैं यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि विस्तार के बारे में। God will lead us.
परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, we can extend the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें, Right? So we can be that mighty force that God is going to use to impact this nation and the nations of the world. और परमेश्वर वो सामर्थी है, हमें सामर्थ के साथ इस देश में और दूसरे देश में भी इस्तेमाल करेगा। So, I'll just pray and close. मैं प्रार्थना के साथ यहाँ बंद करूंगी And I believe that many of you will plant churches. और मैं विश्वास करती हूँ कि कई लोग कलीसिया का रोपण या स्थापना करेंगे And many of us will support the planting of churches. और मैं विश्वास ये भी करती हूँ कि बहुत से लोग हैं, कई लोग जो आप में से वो कलीसिया की स्थापना के लिए सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग को करेंगे। May God give us the grace. परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। Right? So let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you for your word. अनुग्रह स्वर्ग में पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। Father, we pray that you will move by your Holy Spirit in our hearts. प्रभु आप हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के द्वारा चलन किए Lord, put a love in our hearts for the people. और प्रभु हमारे अंदर उस प्रेम को डाले ताकि लोगों के लिए हो सके। Lord, put a love in our hearts, Lord, for cities and villages. और प्रभु जी हमारे अंदर वो प्रेम शहर के लिए और लोगों के लिए हो सके। Father, help us to be those people who will step out. और प्रभु जी हमारी सहायता करिए ताकि वो कदम हमारे लिए बढ़ जाए। Father, we pray for your encouragement. प्रभु आपके उस प्रोत्साहन की हमें आवश्यकता है, Father, we pray for your grace. आपके अनुग्रह की आवश्यकता है। Lord, we ask that you will open the doors for us. प्रभु हमारे लिए आप द्वार को खोलिए। Lord, we pray that every single one of us will be used for the extension of your kingdom. प्रभु आपके राज्य के लिए प्रत्येक जन इस्तेमाल किए जाए। And Father, we thank you that the strongholds of hell will break. और प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि अंधकार की शक्ति के गढ़ ढा दी जाएगी। Lord, we thank you that many souls will be added to the kingdom. प्रभु जी आपके राज में बहुत सी आत्माएं जोड़ दी जाएगी। Father, we thank you for healings and प्रभु जी हम deliverances. धन्यवाद करते हैं चंगाई और छुटकारे के लिए। Lord, we thank you for miracles and प्रभु breakthroughs. जी हम चंगाई के लिए और खुदाबंद टूटते हुए चीजों को देखने के लिए। Father, we stand on the promise of your word. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं और आपकी प्रतिज्ञाओं पर बने रहने के Lord, you लिए। have said in your word, you will build your church and the gates प्रभु, of hell will not prevail against it. आपने वचन दिया है कि अधलोक की शक्ति उस कलीसिया पर प्रभाव नहीं हो सकती। And Father, we thank you that you've given us the authority, you've given us the vision, you've given us the power. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उस दर्शन के लिए, उस सामर्थ के लिए, उस शक्ति के लिए। And Father, we pray that you will use each one of us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन आपके लिए इस्तेमाल किए जाए। Help us to see blessing. और प्रभु सहायता करिए आशीष को प्राप्त करने के लिए। Help us, oh God, to see the increase. और प्रभु जी सहायता करिए बढ़ोतरी के अपने जीवन में के लिए। Help us to be fruitful. प्रभु जी सहायता करिए फलवंत जीवन होने के And लिए। Father, we thank you that even as we step out, you are the God who is walking before us. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारे पहले आप अपने कदम को बढ़ाते हैं कार्य को करने के लिए। Lord, we especially pray for our nation. प्रभु हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते Lord, हैं। in this season, Lord, we pray let there be many strong churches. और प्रभु जी हम प्रार्थना करते समय कि बहुत से जो मजबूत कलीसिया हैं। Lord, that you will raise up strong, mighty men and women of और God. प्रभु जी आप सामर्थी प्रभु जी पुरुष और स्त्रियों को खड़ा करिए। Father, we pray for an awakening in our nation. प्रभु जी हम हमारे देश के जागरूकता के लिए हम प्रार्थना करते Lord, we हैं। pray for a revival in our nation. प्रभु जी हमारे देश के बेदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। And Father, we thank you that you are a prayer answering प्रभु God. धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। Father, we give you all the praise, all the glory and honor. प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको देते And हैं। we commit this prayer in Jesus' name. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। आमीन। Amen. So